Hey, hi guys, how's everybody? So, welcome to the awesome session on environment and ecology. I hope you guys told me that you are enjoying these sessions. और आज के सेशन में तो आपको इतना मजा आने वाला है, क्या बताए। आज आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर क्लास का टाइम कब खत्म हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। तो देखते हैं क्या सही होता है, क्या गलत होता है। हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज एन एकेडमी। Everyone knows which is the largest learning platform of India's. It is an academy. Guys, कभी कभी क्या होता है ना, सुबह से क्लास ले रहे हैं ना, तो ये जो टंग है ना बोलती है, भाई भाई तू जान लेगा क्या मेरी, तो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यू गाइस बियर विथ मी। Hello, Kapil and Ramandi. So on Unacademy, there are many benefits. First and most important benefit of Unacademy is daily live classes. Guys, I hope you are enjoying the daily live classes on Unacademy, which are like free and means point of view से बहुत ही important है। Structured courses हम आपको mainly plus और iconic पे provide करते हैं। So if you want to study in a structured manner, you should be on the plus and iconic. And while going there, you have to use this viral code of success, that is ESK US. Then every day at 8 a.m. I am conducting the awesome live test on Unacademy Learning app, as well as उसी तरह की live test मैं 4 p.m. को भी conduct करता हूँ every day. So don't miss both these live tests, and you should attend these live tests live. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything. For that, you need to download an Unacademy Learning app either from the Google Play Store or from the App Store. This is my Unacademy profile. As soon as you get the your Unacademy app, just follow me in this profile. Just follow me on Unacademy. Dedicate your heads to me on Unacademy and subscribe to this Telegram channel, because I am uploading all my notes in the PDF format on this Telegram channel. This is about me, guys. You already know about me. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them, guys. Thank you very much. On Unacademy, we provide comprehensive syllabus coverage. You can see from polity to science and technology, from history to environment and ecology, from current affairs to practice strategy, art and culture. Everything is there. Good afternoon, Anisha. When you are going on plus, guys, plus पे जाते वक्त होता ये है आपको कि आपको जो है चार बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो आपको लाइव क्लास मिलता है, दूसरा टेस्ट सीरीज मिलती है, तीसरा अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, और चौथा स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। फॉर प्लस यू हैव टू पे दिस मच, बट इफ यू यूज SKUS कोड, this viral code of success will give you 10% discount, and you will be paying like this much only. Good afternoon, Sheetal. And when you are going for iconic, guys, on iconic आपको प्लस के तो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, उसके साथ आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये चार एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसमें भी इफ यू यूज SKUS code, it will give you 10% discount, and instead of paying this much, you will be paying only this much for an iconic subscription. Then these are for optional subscription. You can see एक अलग सब्सक्रिप्शन हमने ऑप्शनल के लिए इंट्रोड्यूस किया है, और एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है। जल्दी आपको उसकी डिटेल्स पता चल जाएगी। इसमें भी आपको एक कोड यूज करना है SKUS, बिकॉज दिस वायरल कोड ऑफ सक्सेस विल गिव यू 10% डिस्काउंट। रमनदीप इज सेइंग स्टफ, इज इट गाइज? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मोबाइल पे तो एकदम अच्छे से और प्रॉपर चल रहा है। आप लोग भी बता दीजिएगा। These are the optionals that are available with Unacademy currently, and many more are on the way. Unacademy Combat, you guys already know. Guys, आपके प्रीलिम को बस 6 मंथ बाकी है, इसीलिए हमने YouTube पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इम्पल्स, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। उसमें मेरी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन क्लास होती है साइंस की एट 9:45 AM। उसी तरह में हमने प्लस पे एक बैच लॉन्च की है। श्रेया, गुड आफ्टरनून। उसी तरह हमने जीएस की एक बैच लॉन्च की है प्लस पे, हमने उसे नाम दिया है चैंपियंस बैच। ये 6 मंथ की जीएस बैच है गाइस, और ये हमने 15 दिसंबर को स्टार्ट किया। आप देख सकते हो इस बैच में हम इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके हेल्प से क्यूरेटेड मटेरियल के फॉर्म में आपको ये बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बैच को अगर आपको अटेंड करना है तो यू शुड गो ऑन दी प्लस, और प्लस पे जाने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, और वो कोड है SKUS, क्योंकि इस कोड से आपको 10 और मोर डिस्काउंट मिल सकता है। Madhu and Pallavi and Seenu, good afternoon. These are the batches that we have launched for 21. These are the batches that we have launched for 22.
एंड दीज आर द बैचेस फॉर 23. यू कैन सी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में हमने बैचेस लॉन्च किए. गाइस इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन द आइकॉनिक यू शुड गो देयर राइट नाउ बिकॉज आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन जो है उसकी प्राइस हाइक होने वाली है जल्दी ही, और इसीलिए आपने अभी आइकॉनिक लेना चाहिए इफ यू आर दैट इन योर माइंड. गुड आफ्टरनून कांची. सो एवरी डे एट 8 AM ये मेरा क्लास चलता है. राइट नाउ यू आर इन दिस क्लास दैट इज हैपनिंग ऑन द यूट्यूब एंड मेरा ये प्लस पे कोर्स है स्पेस टेक्नोलॉजी का. तो आपको अगर आप प्लस पे हो या अगर आप प्लस पे जाना चाहते हो तो आप ये स्पेस टेक्नोलॉजी का कोर्स एक्सेस कर सकते हो. So that's it from my side, guys. We studied about the ecotone in detail. We studied about the ecotone features, ecotone formation. उसके बाद ecotone and ecocline दोनों में हमने डिफरेंस भी बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है. उसमें हमने एग्जांपल्स भी देखे थे ecotone के, अलग अलग एग्जांपल्स बहुत अच्छे से हमने देखे थे. ecotone खत्म होने के बाद फिर हमने एज इफेक्ट पढ़ा बहुत ही केयरफुली और अच्छे से. फिर हमने एज इफेक्ट और एज स्पीसीज दोनों पढ़ा. उसके बाद हमने ये पढ़ा कि नीश क्या होता है. तो अब मैं आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज नीश? ये हमने कल ही पढ़ा था. हमने नीश वाला टॉपिक. तो चलो बताइए व्हाट इज नीश क्विकली. चलो yes, good afternoon to everybody. Yes guys, I want to know what is niche from you. It is the unique role and place of an organism or of an species in an ecosystem. This is niche. Okay, so it was simple. ये देख लीजिए, unique functional or role or place of a species in an ecosystem. Then आपकी niche जो है वो biological हो सकती है, niche physical हो सकती है, या फिर niche chemical भी हो सकती है. मैंने बहुत अच्छे से explain किया था. And without niche, a living organism cannot survive. Without niche, a living organism cannot remain healthy. Without niche, a living organism cannot reproduce. Very good, Sheetal. No two species have exact identical niche. Where no two species have exact identical niche, right? Then ये भी आप याद रखिए बात. Niche is unique for a species, which means no two species have exact identical niche. And niche, this is the most important line that you need to remember for your prelims. Niche plays an important role in conservation of organism. Okay, अगर आपको ऑर्गेनिजम्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या स्पीसीज का किसी कंजर्वेशन करना है, इट इज मस्ट कि यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ निश. विदाउट द नॉलेज ऑफ निश यू कैन नॉट डू दैट गाइस. ओके, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल टू सर्वाइव एंड स्टे हेल्थी एंड रिप्रोड्यूस. राइट, चलिए आगे. फिर हमने बात की थी हैबिटेट निश. कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट निश दैट वी डिस्कस? Yes, the habitat of polar bear is an example of habitat niche, or habitat of sundari tree is an example of habitat niche. दूसरा niche होता है food niche. आप food niche का भी एग्जांपल दे सकते हो. कोला या रेड पांडा ये एग्जांपल है फूड niche के. उसके बाद पोलर बियर ये एग्जांपल है फूड niche का. उसके बाद मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव niche. रिप्रोडक्टिव niche में भी देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश. आप देख लीजिए बहुत सारी फिश होती है जो हमेशा ब्रैकिश वाटर में आके ही रिप्रोड्यूस करती है. या फिर बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्टिव नीच इज अरीबाड़ा. एनीबॉडी हैव एनी नॉलेज अबाउट अरीबाड़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरीबाड़ा? किसी को पता है? मैंने ये कल याद नहीं आया था मुझे बताते हो. देखिए गाइस, ये होता है कि जब आप पढ़ाते हो ना तो पढ़ाते वक्त राइट एग्जांपल याद आना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो जब भी हम रिप्रोडक्टिव नीश कहते हैं ना तो अरीबाड़ा याद आना बहुत ही मस्त, बहुत ही जरूरी है. गुड आफ्टरनून यशस्वी. चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरीबाड़ा? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. जैसे ही मैं अरीबाड़ा कहता हूं तो आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए. कौन सी? ये वाली. देख लो. वाओ, अरीबाड़ा.
This is Aribada, guys. This is Aribada. This is Aribada. This is Aribada. No, it is turtle. It is turtle, guys. आपका जो सी टर्टल है ना, ऑलिव रिडले टर्टल, अरीबाड़ा, ऑलिव रिडले टर्टल भितरकनिका नेशनल पार्क या फिर आपकी जो गहीर माथा नेशनल पार्क है ओडिशा में, वहां पे एग्स ले करने के लिए पैसिफिक ओशियन, स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये पूरा क्रॉस करके कहाँ आते हैं, इंडिया के ओडिशा के स्टेट में, और वहां पे ये आकर लेग्स देते हैं। तो ये जो मास नेस्टिंग है ना और मास एग लेइंग प्रोसेस है ऑलिव रिडले टर्टल की, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अरीबाड़ा। उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, अरीबाड़ा। तो क्या ये एग्जाम्पल नहीं है रिप्रोडक्टिव नीश का? मतलब इन टर्टल्स को अगर रिप्रोड्यूस करना है, इफ दे वांट टू रिप्रोड्यूस, दे विल विजिट दी ओडिशा कोस्ट कंपल्सरी। पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहने दीजिए, पेरू से भी वो फीमेल टर्टल पूरा ओशियन क्रॉस करके सिर्फ एग ले करने के लिए हर साल कहाँ आती है, ओडिशा के कोस्ट लाइन पे। तो ओडिशा कोस्ट लाइन इज द रिप्रोडक्टिव नीश फॉर ऑलिव रिडले टर्टल। इट इज टर्टल। ओके गाइस, क्लियर हो गया? तो आई होप यू गॉट इट व्हाट इज रिप्रोडक्टिव नीश। तो आपको रिप्रोडक्टिव नीश का भी एग्जांपल मिल गया। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल नीश। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट और केमिकल, मतलब वाटर का पीएच, सॉइल का पीएच, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गई आपकी अलग अलग टाइप की नीश। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नीश को और थोड़े डिटेल में। आई होप अब आपको एक फेयर एंड बेसिक आइडिया आ गई व्हाट इज नीश, और उसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दे दिए, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एंड ऑल। लेट्स सी। इन इकोलॉजी, niche is the match of a species. Listen to this very carefully. Yeah? Niche is the match of a species to a specific environmental condition. सुनिए अब, what is true with an extreme statement? अजय कृष्णा, what is true with an extreme statement? सुनिए क्या कहा है इन्होंने। ओके हाँ, अब मुझे बताइए हम नीश किसे कह रहे हैं? जब हम पोलर बियर की नीश कहते हैं कि सी आइस एंड नियर बाय, ये उसकी रिक्वायरमेंट है बेसिक टू सरवाइव, वो उसकी हैबिटेट नीश है। तो हम क्या कह रहे हैं कि पोलर बियर जो सी आइस या नियर बाय एरियाज है, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसके साथ पोलर बियर मैच हुआ या नहीं? इस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ पोलर बियर मैच हुआ या नहीं हुआ गाइस? No, that is wrong, Ajay Krishna. Olive ridley turtles, they lay eggs even on the western coast of India in different states, but most of the time they lay eggs in the Odisha. बाकी की जगह पे because of pollution, industrialization, foods and all, वहां पे उन्होंने eggs ले करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, लेकिन only Odisha is wrong. No. They can lay eggs everywhere. वहां पे हम उसे reproductive niche क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो ऑलिव रिडले टर्टल है, वो जब एग्स ले करने के लिए आते हैं तो दे नीड बीच, उस तरह की सैंड चाहिए, उस तरह का साइलेंस चाहिए, वो सब उनको उड़ीसा में मिलता है, इसलिए हमने उसे नाम दिया रिप्रोडक्टिव नीश ऑफ टर्टल्स। ओके हाँ, चलो बताओ क्या इसने मैच नहीं किया? आपका जो क्या नाम है उसका, पोलर बियर, उसने सी आइस एंड नियर बाय जो एरिया है इसे मैच किया ना, तो खुद उसके साथ मैच हुआ वो, तो वो हो गई उसकी नीश। तो एक देखिए ये मतलब घुमाकर स्टेटमेंट किया है। नीश को हमने क्या कहा कि यूनिक फंक्शनल रोल एंड यूनिक प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर है। जब हम स्पीसीज कह रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बायोटिक फैक्टर। तो आप जब ये कह रहे हो कि एक बायोटिक फैक्टर का यूनिक रोल और यूनिक प्लेस होती है इकोसिस्टम में, तो यू आर सेइंग कि वो इकोसिस्टम जिन अबायोटिक फैक्टर के साथ बनी है ना, उन अबायोटिक फैक्टर के साथ ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये स्पीसीज है, वो उसके साथ मैच हो गई। जो उसके साथ मैच नहीं हो पाई वो उस नीश में सरवाइव नहीं कर पाएगी, जो उसके साथ मैच हो गई वो उसका नीश बन जाएगा। तो उन्होंने वर्ड चेंज कर दिए, स्टेटमेंट चेंज कर दिए, वर्ड घुमा दिए, और आप फिर बैठोगे ऐसे कंफ्यूजन में, अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या? लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होगे।
अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको पता चल गया है एक लिविंग स्पीसीज जो है ना, इट इज द मैच ऑफ अ स्पीसीज टू अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। एक लड़के ने एक लड़की को देखा, दोनों का पहली नजर में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली, तो वो दोनों मैच हो गए ना एक दूसरे के साथ। क्या हम ये कह सकते हैं उस लड़की के लिए वो लड़का एज अ हस्बैंड नीच है? नीच है, नीच नहीं, यार मैं नीच कह रहा हूँ, बाप रे। तो उस लड़की के लिए वो लड़का क्या हुआ, हस्बैंड नीच बन गया, और उस लड़की के लिए वो लड़की क्या हो गई, वाइफ नीच बन गई। यू आर गेटिंग मी? तो दोनों का मैच हुआ, इसीलिए तो शादी हुई ना। सो जब एक स्पीसीज उसके सराउंडिंग एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ मैच होती है ना, तभी नीश बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। जब एक पर्टिकुलर स्पीसीज अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ मैच होती है, तभी उस स्पीसीज का वहां पे नीश बनता है, अदरवाइज नीश नहीं बनता। अगर नीश न बनेगा तभी तो वो स्पीसीज खुद को उस एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश कर पाएगी। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। चलिए आगे। इट डिस्क्राइब्स, नीश क्या डिस्क्राइब करती है? इट डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन responds to the distribution of resources and competitors. Wow, राइट यशस्वी? तो यहाँ पे भी अब एक बहुत प्यारी सी बात बता रहे हैं वो गाइज। मेरा जो ये एनवायरनमेंट को आपके साथ करवाने का जो एम है ना, वो एम ही है कि अगर आपके साथ कोई गेम खेले यूपीसी जस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और स्टेटमेंट, तो उस वक्त आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये मेरा एम है। इसलिए मैं स्टेटमेंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है, और हमें ऐसा लगता है पढ़ने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया और मैं आंसर करूंगा या करूंगी। लेकिन जब हम एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं तो कभी कभी स्टेटमेंट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर कट एग्जैक्ट पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, और वो आपको पता चलेगा। क्लियर? कैसे? देखिए, इट डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंपिटेटर्स। सुनिए अब आप बहुत केयरफुली, फिर से एक बार अगर हम चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका, पोलर बियर का। पोलर बियर को सी आइस ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो सी आइस ब्रेक करके सी में एंट्री कर सकता है और वहां पे सील को हंट कर सकता है। वो उसकी जो हंटिंग स्किल है ना, वो पोलर बियर की हंटिंग स्किल ही है कि वो जो है आपके सी आइस को ब्रेक करके फिर सी में एंटर करेगा, स्विम करते करते सील को क्या करेगा, हंट करेगा। अब उसके पास आइस है लेकिन सील को हंट करने के लिए नीचे पानी ही नहीं है, तो पोलर बियर हंट नहीं कर पाएगा। तो पोलर बियर ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया ना, वहां पे जिस तरह से रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द फॉर्म ऑफ सील इन द सी, उसको पोलर बियर ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। और उसके साथ साथ पोलर बियर के वहां पे कंपिटेटर वैसे भी कम होते हैं पोलर रीजन में, लेकिन वो किस तरह से रिसोर्सेस और कंपिटेटर्स को रिस्पॉन्ड करता है उसे नीश कहते हैं। हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंपिटेटर्स, उसे हम क्या कहते हैं, नीश। नीश ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू रिसोर्सेज एंड द कंपिटेटर्स। यू आर गेटिंग मी? तो आपने सुना कि नीश क्या होता है, इट इज द यूनिक फंक्शनल रोल एंड यूनिक प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। उसके बाद आपने ये देखा कि नीश फिजिकल रीजन से बन सकती है, केमिकल रीजन से बन सकती है, या बायोलॉजिकल रीजन से बन सकती है। देखिए एक एक बात, ठीक है, किसी भी दो स्पीसीज की नीश यूनिक नहीं है, मतलब आइडेंटिकल नहीं हो सकती, हर एक स्पीसीज की अपनी एक यूनिक नीश होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन करना है तो यू नीड इंफॉर्मेशन ऑफ नीश। उसके बाद आपने हैबिटेट नीश, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश एंड फिजिकल एंड केमिकल नीश देखा। उसके बाद जो है आपने ये देखा कि ये जो नीश होती है, niche is nothing but when a species or organism matches itself with the surrounding environment, वो हो गई उसकी नीश। नीश और क्या डिस्क्राइब करती है? नीश ये डिस्क्राइब करती है कि वो ऑर्गेनिज्म जिस तरह से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस इकोसिस्टम में, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। नीश क्या डिस्क्राइब करती है? वो ऑर्गेनिज्म कंपिटेटर्स को उसके इकोसिस्टम में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसे कहते हैं नीश। तो नॉर्मल रिवर फिश ओशियन में क्यों सर्वाइव नहीं कर पाती?
शीतल क्योंकि नॉर्मल रिवर फिश जो है वो उसकी जो केमिकल नीश है वो है फ्रेश वाटर, और ओशियन में जब जाते हैं तो सॉल्ट वाटर से, इसलिए वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, क्लियर। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, ग्रोइंग व्हेन रिसोर्सेज आर abundant and when predators, parasites and pathogens are scarce, and how it in turn alters those same factors, for the example limiting access to resources by other organisms acting as a food resource for predators and consumers of prey। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को या कॉम्पिटिटर्स को रिस्पॉन्ड करती है। फिर से हम पोलर बियर पे आते हैं क्योंकि उससे प्यारा अच्छा एग्जांपल नहीं है। मुझे बताइए, पोलर बियर मोस्ट ऑफ द टाइम हाइबरनेशन में समर में जाता है या स्प्रिंग में जाता है? बताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम हाइबरनेशन में वो समर में जाता है या स्प्रिंग में जाता है, सॉरी विंटर में जाता है या स्प्रिंग में जाता है? बोलो। 6 मंथ के लिए हाइबरनेशन में जाता है ना पोलर बियर, तो वो 6 मंथ कौन से हैं? तो 6 मंथ है विंटर के। ओके, सॉरी सुन लो, जो हार्श विंटर होते हैं ना, उन हार्श विंटर में वो हाइबरनेशन में चला जाता है, और स्प्रिंग में वो क्या करता है? सरवाइव करता है। स्प्रिंग में ये पोलर बियर क्या करता है पता है आपको? इतनी ज्यादा हंटिंग कर लेता है, इतना ज्यादा अपना फैट कंटेंट बढ़ा लेता है, इतना ज्यादा खा लेता है कि बाद में 6 मंथ के लिए उसे खाना मिले भी ना तो भी वो सरवाइव कर पाता है। तो उसने वहां का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ मैच होने के लिए जब फूड रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल थे तब उसने उनको ज्यादा ईट किया, सो दैट ही कैन सर्वाइव। आ गया। फॉर एग्जाम्पल, by growing when resources are abundant, by growing when resources are abundant, जब प्रेडेटर कम है, जब पैरासाइट कम है, जब पैथोजन कम है। ठीक है, इनको भी आप उसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो इस स्लाइड से आपको पता चला कि नीश इज नथिंग बट व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज मैचेस टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस, और वो नीश में हम क्या, नीश क्या डिस्क्राइब करती है? वो स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन किस तरह से रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्ड कर रही है, किस तरह से कंपटीटर्स को रिस्पॉन्ड कर रही है। ये सब हो गया आपका नीश का। देन आगे आ जाइए, आगे ईच एंड एवरी वर्ड इन दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। द टाइप, द टाइप and the number of variables comprising the dimensions of an environmental niche vary from one species to another, and the relative importance of particular environmental variables for a species may vary according to the geographic and biotic context। सुनिए, a type and the type and number of variables comprising the dimensions of an, ओके, एनवायरमेंटल जो नीश है, आपकी जो एनवायरमेंटल नीश है, वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज वैरी करती है, राइट? एनवायरमेंटल नीश वैरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, एंड द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स फॉर अ स्पीसीज may vary according to the geographic and biotic context। जैसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हर एक स्पीसीज के लिए अलग है, या इवन किस रीजन में वो स्पीसीज रहती है उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हर एक स्पीसीज के लिए अलग होती है। ये यहाँ पे न्यूज में दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। चलिए आगे। अब अलग अलग नीश है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नीश बताई है आपको। यहाँ पे ये तीनों पॉइंट है ना, दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री 2021। क्योंकि देखिए, मुझे एक बात बताइए, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, डू दे नो अबाउट नीश? Most of the UPSC aspirants, they read and Shankar IAS and they do have fair idea what niche is। Am I right? Am I right guys? बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूं? Sir, what happened? Energy is low. No, Ajay Krishna, I am just trying to be like constant. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी स्टैटिक और कांस्टेंट होना ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने इतने सारे क्लासेस लिए हैं ना, तो ऑब्वियसली आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव माय एनर्जी फॉर 4 PM। वो भी तो क्लास लेना है ना हमें 4 PM का, तो उसमें हमें एनर्जी सेव करके रखनी पड़ेगी।
तो मैं बहुत लो एनर्जी के साथ भी नहीं हूँ और बहुत हाई एनर्जी के साथ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट मेंटेनिंग इट। ओके क्लियर, चलो यस। अब अगर यूपीएससी ने आपको गलती से पूछ लिया भाई साहब, फॉर यू अजय, गलती से पूछ लिया कि भाई बताओ ग्रेनिलियन नीश क्या है। अब भाई इसने तो सिर्फ नीश पढ़ा हुआ है और यूपीएससी ने तो पूछ लिया ग्रेनिलियन नीश, अब हो गया वांदा, हो गया वांदा। लेकिन अब आपका वांदा नहीं होगा, कैसे ये देख लीजिए। अ ग्रेनिलियन नीश इज डिटरमाइंड बाय द हैबिटेट in which a species lives and its accompanying behavioral adaptations। तो याद रखिए, जब आप ग्रेनिलियन नीश कहते हो ना, तो ग्रेनिलियन नीश दो चीजें याद रखिए, एक उस स्पीसीज के हैबिटेट के बारे में बात करती है और उसके बिहेवियरल एडेप्टेशन के बारे में बात करती है, बिहेवियरल एडेप्टेशंस। तो अगर आपको ग्रेनिलियन नीश के बारे में पूछा तो दे आर एक्चुअली आस्किंग यू अबाउट हैबिटेट नीश और बिहेवियरल नीश। और अगर आपको इल्टोनियन नीश के बारे में पूछा, इल्टोनियन नीश, it emphasizes that a species not only grows in and responds to an environment, it may also change the environment and its behavior as it grows up। देखिए, एल्टोनियन नीश क्या कहती है कि नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं, हमने नीश की डेफिनेशन यहाँ क्या दी थी, द मैच ऑफ अ स्पीसीज टू अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, द मैच ऑफ अ स्पीसीज टू अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। मुझे एक बात बताइए, किसी भी इकोसिस्टम में जब हम इकोसिस्टम टर्म यूज करते हैं, इज देयर अ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक, दो बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है क्या, यस। दो बायोटिक के बीच में एक्सचेंज होता है क्या, यस। बायोटिक और अबायोटिक के बीच में एक्सचेंज होता है क्या, यस। दोनों में इंटरेक्शन होता है क्या, यस। अब मुझे बताइए, ओके सीनू जस्ट गिव मी अ मिनट, अब मुझे बताइए कि क्या बायोटिक फैक्टर्स अबायोटिक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, बायोटिक फैक्टर की वजह से अबायोटिक फैक्टर चेंज हो सकते हैं क्या, बोलो। बायोटिक फैक्टर की वजह से अबायोटिक फैक्टर चेंज हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मार्शी एरियाज है ना, मार्शी एरियाज में मेनली कौन सा गैस इमिट होता है, मीथेन गैस इज इमिटेड बाय द मार्शी एरिया। अब ये मीथेन गैस कहां से आ रहा है, अब मीथेन इटसेल्फ इज अ बायोटिक फैक्टर, मार्शी एनवायरमेंटल कंडीशन इज अ बायोटिक फैक्टर, बट the concentration of methane is more in marshy areas because of a biotic factor called मिथेनोजेंस, जो कि एक बैक्टीरिया का टाइप है, मिथेनोजेंस जो कि एक बैक्टीरिया का टाइप है। और एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल। दिल्ली जो है वो गंगा और यमुना के प्लेन्स में है, और आपका ईस्टर्न यूपी का कोई छोटा विलेज, वो भी तो गंगा और यमुना के प्लेन में ही है। फिर दिल्ली में ही इतना पोल्यूशन क्यों है और उस विलेज में क्यों नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ह्यूमन नाम का बायोटिक फैक्टर रहता है, उसने वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है। दिल्ली में जो ह्यूमन नाम का बायोटिक फैक्टर रहता है, उसने पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है। तो यस गाइस, आपकी जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ये अबायोटिक फैक्टर्स भी अबायोटिक फैक्टर भी चेंज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बायोटिक फैक्टर। यही तो आपका एल्टोनियन नीश कह रहा है। एल्टोनियन नीश कहता है कि स्पीसीज सिर्फ ग्रो नहीं होती, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट स्पीसीज ग्रो नहीं होती, तो ये स्पीसीज ग्रो होते होते एनवायरमेंट को भी चेंज कर सकती है। यस अजय कृष्णा, इट कैन लीड टू, उसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं हम। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैन लीड टू द इमिशन ऑफ मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, इसे हम मीथेन हाइड्रेट्स कहते हैं। ये करंट अफेयर में भी था, समझ में आ रहा है आपको। एल्टोनियन नीश का मतलब क्या है कि बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, एंड इट्स बिहेवियर एज इट ग्रोज।
तो वो अपना बिहेवियर भी चेंज करता है और एनवायरनमेंट को भी चेंज करता है अकॉर्डिंग टू एल्टोनियन नीश। तो ग्रेनेलियन नीश कहती है इट स्पीक्स अबाउट हैबिटेट एंड बिहेवियरल एडेप्टेशंस। जो आपका एटोनियन नीश है, एटोनियन नीश स्पीक्स अबाउट दी हाउ एनवायरनमेंट चेंजेस बिकॉज ऑफ द स्पीसीज। एंड जो आपका हचिनसोनियन नीश है ये यूज करता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू एक्सप्लेन हाउ स्पीसीज को एग्जिस्ट विद इन अ गिवन कम्युनिटी, हाउ स्पीसीज को एग्जिस्ट इनटू अ गिवन कम्युनिटी। तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग नीश आपको पता चल गई। यू गाइज हैव फेयर आइडिया व्हाट इज हैबिटेट नीश, राइट? देन यू गाइज हैव फेयर आइडिया what is that reproductive niche। और कौन कौन सी नीश है बताइए तो? हैबिटेट नीश, रिप्रोडक्टिव नीश, फूड नीश। बताओ कौन कौन सी नीश है? तो आपको हैबिटेट नीश पता चल गया, फूड नीश पता चल गया, रिप्रोडक्टिव नीश पता चल गया, फिजिकल एंड केमिकल नीश भी आपको समझ में आ गया है। अब क्या आपको ग्रेनेलियन नीश समझ में आ गया सभी को? habitat and behavioral adaptation, Etonian niche, change in the environment because of the biotic factor, that is living organism or species. Hutchinson niche, it uses mathematics and statistics to explain coexistence of species within a given community। मतलब हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि दो स्पीसीज का नीश कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता है कि ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं जहां पे एक रीजन में सिर्फ एक स्पीसीज रहती है, एक रीजन में कितनी सारी स्पीसीज रहती है। तो वहां पे हम ये जो लाइन है कि दो स्पीसीज की नीश सेम नहीं हो सकती, ये लाइन शायद रॉन्ग हो सकती है लेकिन नहीं है। तो वो कैसे एक्सप्लेन करता है? मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बेस पे। तो ये हो गई नीश। आई होप यू गाइस गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट द नीश। और बात करते हैं हम नीश की। Majority of species exist in a standard ecological niche, okay, sharing behaviors, adaptations, and functional traits similar to other closely related species within the same taxonomic class, but there are exceptions। चलो छोड़ो, इसका सिंपल सा ये बात है, ये कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड नीश नाम की टाइप, एक स्टैंडर्ड नीश नाम की कंसेप्ट होती है। तो स्टैंडर्ड नीश में नियरली अलग अलग स्पीसीज एक साथ को एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाट द लास्ट हचिनसोनियन नीश इज सेइंग, ओके। A premier example of non-standard niche filling species is the flightless ground-dwelling kiwi bird of New Zealand, which feeds on worms and other ground creatures and lives its life in a mammal-like niche। तो देखिए कीवी जो है ना, कीवी बर्ड है, and there are so many species of birds, there are so many species of birds। अब ये कीवी बर्ड जैसे रहता नहीं, नॉर्मली बर्ड्स उड़ते हैं, वर्म्स खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाई करते हैं। कीवी ऐसा नहीं करता, कीवी बर्ड होकर भी कैसे रह रहा है? मैमल की तरह। तो कीवी क्या स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल नीश में रह रहा है उसके? ये जो कीवी बर्ड है क्या ये अपनी स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल नीश में रह रहा है? बिल्कुल नहीं, वो रह रहा है मैमल जैसे। तो दिस इज द एक्सेप्शन टू द स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल नीश। नॉर्मली एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे मैमल्स है ना, कोई भी मैमल्स हो, ये सारे मैमल्स आपको एक पर्टिकुलर नीश में ही मिलेंगे, एक पर्टिकुलर नीश में ही मिलेंगे। उसे कहते हैं मैमल की स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल नीश। फिश की एक स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल नीश है, तो फिश वहीं पे रहती है। उसके बाद जितनी भी आपके कार्निवोर्स है उनकी एक स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल नीच है, वो वही रहेंगे। जितने भी हर्बिवोर्स है उनकी भी एक स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल नीच है, तो वो वही रहेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने कीवी का दिया है। सर प्लैटिपस एंड एकिडना भी इस नीचे का नीच का एग्जाम्पल बन सकते हैं। Platypus and echidna, we need to study about them in detail. Now, right now, we can't say anything yashashri about that. Okay, so normally याद रखिए most of the majority of species exist in standard ecological niche। क्या ये statement correct है? Most majority of species exist in standard ecological niche। Is this statement correct, guys? I am waiting for your answer. Let's see how many of you can answer। बोलिए। यस गाइस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी तो हमने कहा।
और इसके कुछ एक्सेप्शन भी हमने देखे, फॉर एग्जांपल कीवी। चलिए आगे, अब हमें डिस्कस करना है बायोम। आई होप यू गॉट क्लियर आइडिया व्हाट इज नीश। अब देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है। नाउ यू नो व्हाट इज इकोसिस्टम, नाउ यू नो व्हाट इज एनवायरनमेंट, नाउ यू नो व्हाट इज इकोलॉजी, now you know what is ecotone, now you know what is niche, and now you know what is the ecological organization। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था सबसे पहले क्या आता है, व्हाट कम्स फर्स्ट, सबसे पहले आता है आपका इंडिविजुअल, उसके बाद आता है आपकी आती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी, और गाइस कम्युनिटी के बाद आता है आपका इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम, एंड बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर। तो गाइस हमने यहां तक तो पढ़ लिया, इकोसिस्टम तक हमारा हो गया, और बहुत अच्छी से प्यारी प्यारी कंसेप्ट हमने पढ़ ली, समझ ली, जिसकी वजह से आपको एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी के क्वेश्चन के आंसर देना इजी हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं बायोम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी बायोम। सबसे पहले व्हाट इज बायोम? It is a community of plants and animals that have common characteristics for the environment they exist। तो बायोम में बिकॉज इसमें वर्ड है बायो, इसमें क्या वर्ड है बायो, तो इट इज ओनली अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी जब हम कहते हैं तो इट इज ओनली अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नॉन लिविंग ऑल्सो इट इज ओनली अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। When we say ecosystem, we are talking about living or non-living. We are talking about both living and non-living and their interaction and exchange between living, non-living, right? लेकिन जब आप बायोम कहते हो ना, बायोम में we consider only plants and animals, मतलब we are considering only living organisms in biome। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट के लिए। तो बायोम इज द कम्युनिटी ऑफ, बायोम इज द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, इट इज द कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स, ये कम्युनिटी है प्लांट और एनिमल्स की, जिस एनवायरनमेंट में ये प्लांट और एनिमल रहते हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनमें क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे कहते हैं बायोम। समझे आप? समझे आप? बायोम की डेफिनेशन में हम टर्म यूज कर रहे हैं, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, और ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। ओके, so biome is a community of plants and animals that have common characteristics for the environment they exist in। they can be found over a range of continent। नॉर्मली बायोम आपको, मतलब बायोम की जो रेंज है ना वो बहुत बड़ी है, मतलब एरिया वाइज दे आर वेरी लार्ज, बायोम्स आर वेरी लार्ज एरिया वाइज, तो दे कैन यू कैन फाइंड देम ओवर दी कंटिनेंट्स। और बायोम में आपको डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज मिलेंगी जो बायोम के फिजिकल क्लाइमेट की वजह से बनी है। बायोम इज अ ब्रॉडर टर्म देन हैबिटेट। एनी बायोम कैन कंप्राइज एनी वैरायटी ऑफ हैबिटेट। एक बायोम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ हैबिटेट्स हो सकते हैं, एक बायोम के अंदर अंदर हंड्रेड्स ऑफ इकोसिस्टम्स हो सकती है, एक बायोम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटीज हो सकती है। ये तो मतलब लॉजिकल कॉमन चीज है, आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो ये हो गई बायोम की डेफिनेशन। आपको ये फर्स्ट दो लाइन बहुत केयरफुली याद रखनी है बायोम के लिए। इट इज अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट फॉर द एनवायरनमेंट दे एग्जिस्ट इन। वी आर गोइंग अहेड। बायोम हो गया। उसी तरह एक कंसेप्ट होती है माइक्रोबायोम। आपका बायोम लार्ज एरियाज कवर करता है, लेकिन माइक्रोबायोम इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कोएग्जिस्ट इन अ डिफाइंड स्पेस ऑन मच स्मॉलर स्केल।
मतलब अगर मेरा घर जो है ना ये मेरा माइक्रोबायोम हो सकता है, मेरा पूरा घर जो है ना ये मेरा माइक्रोबायोम हो सकता है। मेरी घर की जो हॉल है वो एक इकोसिस्टम हुई, मेरा बेडरूम एक इकोसिस्टम हुआ, हमारा स्टोर रूम एक इकोसिस्टम हुआ, किचन एक इकोसिस्टम हुआ, और इन सब का मिलकर एक बायोम बन गया, उसको हमने नाम दिया माइक्रोबायोम। तो माइक्रोबायोम स्मॉल स्केल पे होता है, आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन माइक्रोबायोम जो है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, viruses and other microorganisms that are present on or in a human body। आपके सामने एक बायोम बैठा है और उस बायोम का नाम है डॉक्टर सचिन उमराव कदम। क्योंकि इस बायोम जो है ना, ये जो बायोम आपके सामने बैठा हुआ है, इसकी स्किन पे आपको फंगस बैक्टीरिया मिलेंगे। आपको पता है ना, हमारा पंजेंट स्मेल, हमारे बॉडी का स्मेल क्यों आता है? बिकॉज देर आर सम बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन अवर अंडर आर्म, बैक्टीरिया है। उसी तरह मेरे सराउंडिंग में या मेरे हाथों पे, पैरों पे, बालों पे वायरसेस भी हो सकते हैं। मेरे बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जिसे आप जीआई ट्रैक्ट कहते हो, उसमें इकोलाई बैक्टीरिया, वर्म्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ह्यूमन बायोम हो गया, माइक्रोबायोम। इसी को आप गट माइक्रोबायोटा कहते हो। क्या कहते हो? गट माइक्रोबायोटा। जो आपके गट रीजन में मिलता है ना, उसको हम कहते हैं गट माइक्रोबायोटा। तो माइक्रोबायोम ह्यूमन इज एन एग्जांपल। एक एक लिविंग एनिमल, जैसे प्लांट, एक सिंगल प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोम। अ सिंगल एनिमल इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोम एंड ऑल। ओके, सो आपको बायोम बता दिया मैंने। अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एनवायरनमेंट दे एग्जिस्ट इन। माइक्रोबायोम एक सिंगल इंडिविजुअल इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोम। अब बायोटा का मतलब क्या होता है? इट इज द टोटल कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ जियोग्राफिक रीजन और अ टाइम पीरियड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप बायोटा कहते हो ना, इट इज द टोटल कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कहाँ पे? एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको आप उस जियोग्राफिक रीजन का बायोटा कहोगे, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते थे उसको आप बायोटा कहोगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन से पहले, फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन से पहले बायोटा अलग था, और सेकेंड और फर्स्ट एक मास एक्सटिंक्शन के बाद, बिफोर दिस बायोटा अलग था, एंड आफ्टर दिस बायोटा इज डिफरेंट। एम आई राइट? इससे पहले बायोटा अलग था और इसके बाद में बायोटा अलग है। तो बायोटा टाइम पीरियड, ओवर अ टाइम पीरियड भी हम टर्म बायोटा यूज कर सकते हैं, या ओवर अ जियोग्राफिकल लोकेशन भी हम टर्म बायोटा यूज कर सकते हैं। ओके, जियोग्राफिकल लोकेशन। सो आपको मैंने बायोम समझा दिया, मैंने आपको माइक्रोबायोम समझा दिया, मैंने आपको बायोटा समझा दिया। दीज आर द डिफरेंट बायोम्स। इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रे कलर, दिस इज आइस शीट एंड पोलर डेजर्ट, दैट इज ग्रीनलैंड। देन आपको ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये वाला, इसे आप कहते हो टुंड्रा बायोम। उसके साउथ में आओगे तो ये तैगा बायोम है। उसके भी और साउथ में आओगे तो इसे कहते हैं टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट ये रही। टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आपको चाइना तक मिलेगा। उसके बाद उसके और नीचे आओगे आप, देखिए टेम्परेट स्टेपीज ग्रासलैंड, टेम्परेट स्पीसीज ग्रासलैंड, टेम्परेट स्टेपीज, सॉरी टेम्परेट ग्रासलैंड दिख रहा है, टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। उसके बाद जो है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मेनली मिलेगा, ये रहा सब ट्रॉपिकल, सॉरी ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये सारे बायोम आप लोग देख सकते हो एक बार। ये सारे बायोम हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम डिस्कस करेंगे, जिसमें टुंड्रा बायोम होगा, वाओ। उसके बाद अल्पाइन टुंड्रा होगा, वाओ। उसके बाद टुंड्रा बायोम, रेनडियर मॉस क्या होता है, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। कल का क्लास इतना औसम होने वाला है, और कल हमारी क्लास 4 ही क्लास है, तो और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, कल का क्लास ऑसम होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही काफी। जाने से पहले आपको ये कोड याद रखना है, SPUS कोड, बिकॉज दिस कोड will give you 10% discount on your plus as well as iconic subscription
देन आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जब इसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड डेडिकेट योर हेड्स टू मी ऑन अनअकैडमी। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू वेरी मच, वी आर मीटिंग अगेन। कब मिलने वाले हैं, बोलो बोलो बोलो। हम फिर से मिलने वाले हैं 4 बजे आज इवनिंग में विथ अ मॉक टेस्ट। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा गाइस।